Students, class 9th, Moment book, chapter 4, In the Kingdom of Fools. Lesson read करते हैं बेटा. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happened to them? इट इज़ बिलीव दैट, ये विश्वास किया जाता है कि मूर्ख इतने खतरनाक होते हैं, काफ़ी डेंजरस होते हैं कि केवल बहुत बुद्धिमान लोग ही उन पर काबू पा सकते हैं. इस कहानी में मूर्ख कौन है, उसके साथ क्या घटना घटती है. वट हैपन्स टू देम. इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वेयर इडियट्स. दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स. So they decided to change night into day and day into night. They ordered that everyone should be awake at night, till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. Anyone who disobeyed would be punished with death. The people did as they were told for fear of death. The king and the minister were delighted at the success of their project. One day, a guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about, everyone asleep, not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by day. And the two strangers were amazed by what they saw around them, and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. The two men were hungry. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. To their astonishment, they found that everything cost the same, a single doodoo. Whether they bought a measure of rice, a bunch of bananas, it cost a doodoo. The guru and his disciple were delighted. They had never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupees. Yes students, मूर्खों के राज्य में एक राजा और एक मंत्री, दोनों ही जो थे वो मूर्ख थे. वे दूसरे राजाओं की तरह शासन नहीं करना उन्हें आता था, चाहते ही नहीं थे. इसलिए उन्होंने रात को दिन में और दिन को रात में बदलने का निश्चय किया. उन्होंने हुक्म दिया कि प्रत्येक को रात के समय जागना था और अपने खेतों में खेती जोतना था. केवल अंधेरा होने के बाद ही वो व्यवसाय करने निकलते थे. सूर्य निकलते ही उन्हें सो जाना था. जो कोई भी आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे क्या दी जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी. किसकी पनिशमेंट, उसे मौत की पनिशमेंट दी जाएगी. मौत के भय से लोग वही करते जो उन्हें कहा जाता. राजा और मंत्री जो दोनों थे वो क्या करते, दोनों अपनी योजना को सफल होते देखकर प्रसन्न हुए. एक दिन जो गुरु था उसने अपने उसका शिष्य शहर में पूछे. यह काफ़ी सुंदर शहर था. इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी. दिन का प्रकाश था, परंतु वहाँ कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था. सभी व्यक्ति सोए हुए थे, जहाँ तक कि जानवरों को भी दिन में सोना सिखाया गया था. दोनों अजनबी व्यक्तियों को बड़ी हैरानी हुई, तो उन्होंने चारों ओर देखा. वे नगर में शाम को घूमते रहे. अचानक सारा नगर जाग गया. रात को वो अपना काम करने लगे. दोनों आदमी, द टू मैन वर हैंग्री, दोनों आदमी भूखे थे. अब जब दुकानें खुली तो वे कुछ सामान खरीदने के लिए चल पड़े. वे हैरान थे. किस बात के लिए हैरान थे वो? उन्होंने पाया कि प्रत्येक चीज़ की कीमत एक डुडू ही थी. चाहे वे चावल का नाप हो, केले का गुच्छा हो, एक ही मूल्य, सबका मूल्य एक डुडू था. गुरु और शिष्य बड़े खुश हो गए. क्यों खुश हुए? उन्होंने कभी ऐसी स्थिति के बारे में नहीं सुना था. वे खाने की सभी चीज़ों को 1 रुपये में ही खरीद सकते थे. When they had cooked and eaten, the guru realized that this was a kingdom of fools, and it would not be a good idea for them to stay there. There is no place for us. Let's go, he said to his disciple. But the disciple did not want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good, cheap food. The guru said, they are all fools.
This won't last very long, and you cannot tell what they will do to you next. But the disciple would not listen to the Guru wisdom. He wanted to stay. The Guru finally gave up and said, "Do what you want. I am going," and left. The disciple stayed on. At his field every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. जब वे खाना बना जब वे खाना बना चुके थे और खा चुके थे, तो गुरु जी ने महसूस किया, गुरु रियलाइज्ड मैंने क्या होता है, महसूस करना, कि उन्होंने महसूस किया कि ये मूर्खों का राज्य है, इसलिए उनके लिए यहाँ ठहरना उचित नहीं है, ठीक नहीं है, ये जगह हमारे लिए नहीं है, यहाँ से चलें। उसने अपने शिष्य से कहा, और लेकिन शिष्य इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। यहाँ प्रत्येक चीज़ सस्ती थी, सस्ती की वजह से यह सिर्फ अच्छा और सस्ता भोजन चाहता था। गुरु बोले, वे सब मूर्ख हैं, यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। ऑल ही वांट इज वाट गुड चीप फूड। द गुरु सेड, तो तुम यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रहा जाएगा, तुम यह नहीं बता सकते कि आगे क्या करेंगे, वट दे विल डू यू नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ दे आर ऑल फूल्स। बट द डिसिपल वुड नॉट, लेकिन शिष्य ने गुरु जी की बुद्धिमत्ता पूर्ण सलाह की और ध्यान नहीं दिया। वह वहीं रहना चाहता था, उसने ध्यान नहीं दिया। गुरु जी ने अंत में अपनी कोशिश छोड़ दी और बोले, द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, और उन्होंने कहा, क्या कहा कि चलो, बोले चाहे जो करो, मैं तो जा रहा हूँ, और वे चल पड़े। लेकिन शिष्य वहीं ठहरा। वह सारा दिन पेट भरता रहा, केले, घी, चावल, गेहूँ आदि खाता रहा, और सड़क के बीच में सड़क के बीच में लेट जाता और मोटा होता चला गया। One bright day, a thief broke into the rich merchant house. He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old houses collapsed on his head and killed him on the spot. His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this justice. अब एक दिन चोर ने क्या किया? एक चोर ने दिन के उजाले में किसी अमीर आदमी के घर में घुस गया। उसने दीवार में एक छेद किया और चुपके से घर में घुस गया। जब वह लूटा हुआ माल लेकर बाहर जा रहा था तो पुराने घर की दीवार उसके सिर पर गिर गई और उसकी उसी जगह मृत्यु हो गई। उसका भाई भागकर राजा के पास गया और उसने शिकायत की। क्या शिकायत की? महाराज, मेरा भाई जो अपना पुराना रोजगार कर रहा था, उस पर दीवार गिर गई, वह मर गया। सारा दोष उस व्यापारी का है। उसे अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। इस अपराधी को आप अवश्य सजा दें, पनिशमेंट दी जाए, और परिवार को इस अन्याय के लिए उसको फैमिली को कंपेंसेट, मतलब उसकी जो पैसे लगे हैं, जितना भी उसका खर्च हुआ है, वो सारा उसको क्षतिपूर्ति करें, उसको दिया जाए। The king said, Justice will be done. Don't worry, and at once summoned the owner of the house. राजा ने क्या कहा? न्याय मिलेगा। डोंट वेरी, चिंता मत करो। और तुरंत ही उसने घर के मालिक को बुलवा लिया। जब सौदागर आया तो राजा ने प्रश्न पूछा। क्या पूछा उसने? व्हाट द मर्चेंट अराइव्ड। सौदागर आया। द किंग क्वेश्चन हिम, व्हाट्स योर नेम। उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। सच एंड सच, योर हाइनेस, वेयर यू एट होम व्हेन द डेड मैन buzzed at your house? Yes, my lord, he broke in and the wall was weak, it fell on him. The accused pleads guilty. Your wall killed the man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. Lord, said the helpless merchant, I did not put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He did not build. It is right. You should punish him.
What is that? Who is that? Sorry. My lord, this wall was built in my father's time. I know the man's, he's an old man now. He lives nearby. The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him, tied hand and foot. You there, did you build this man's wall in his father's time? Yes, my lord, I did. What kind of a wall in this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death. अब उसने बोला, व्हाट्स योर नेम? उसने बताया अपना नाम। सरकार, मेरा नाम यह है। क्या तुम घर पर ही थे? वेर यू एट होम? क्या तुम घर पर ही थे जब मृतक ने तुम्हारे घर में जो है घुस गया था, चोर जो? हाँ सरकार। उसने क्या कहा? यस माय लॉर्ड। हाँ सरकार। उसने दीवार में छेद किया और दीवार क्या थी? कमज़ोर थी, जो उस पर गिर गई। अपराधी ने अपना अपराध जो है स्वीकार कर लिया है। उसकी दीवार जो है अब आपकी दीवार के इस व्यक्ति के भाई ने जान चली गई है। तुम उसके हत्यारे हो, हमें तुम्हें सजा देनी होगी। सरकार, व्यापारी बोला, दीवार तो मैंने नहीं बनाई थी। वास्तव में यह उस आदमी का कसूर है जिसने यह दीवार बनाई है। अब उसने इसे ठीक से नहीं बनाया, उसे सजा दो। हु इज़ दैट? उसने पूछा, वह कौन है? सरकार, यह दीवार मेरे पिताजी के समय में बनाई गई थी। मैं उस व्यक्ति को जानता ही नहीं। वह एक बूढ़ा आदमी है, यहाँ पास में ही रहता है। राजा ने, द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स, राजा ने अपने दूतों को उस मिस्त्री को पकड़ कर लाने के लिए भेजा जिसने दीवार बनाई थी। दूत उसके हाथ और पांव बांध कर ले आए। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स? तुमने इस व्यक्ति के पिता के समय में दीवार बनाई थी? जी हाँ सरकार, मैंने ही बनाई थी। तुमने यह दीवार कैसी बनाई? व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल? तुमने यह दीवार कैसे बनाई थी? यह एक गरीब आदमी पर गिर गई और उसकी जान ले ली। तुम ही उसकी मौत का दोषी हो। हमें तुम्हें मृत्यु दंड देना पड़ेगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशंस, द पुअर bricklayers pleaded, please listen to me before you give your orders. It's true, I built this wall and it was no good, but that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I could not keep my eyes on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. You are right. The case depends. We must look into it. It is not easy to judge such complicated cases. Let's get that dancer wherever she is. The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. Did you walk up and down the street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? Yes, my lord, I remember it very well. So you did walk up and down with your anklets jingling. You were young and you distracted him. So he built a bad wall. इससे पहले कि राजा उसको मौत की सजा सुनाए, बेचारे जो मिस्त्री था, मिस्त्री, उसने प्रार्थना की, अपना आदेश सुनने से पहले कृपया मेरी बात सुन ली। यह सच है कि दीवार मैंने बनाई, वह मजबूत नहीं बनी, परंतु ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा दिमाग उस समय उसके दीवार बनाने के काम में नहीं था। मुझे अच्छी तरह से याद है उस डांसर की जो पायल छनकाती हुई सारा दिन सड़क पर आगे पीछे घूमती रहती थी। मेरी आंखें और मेरा मन उस दीवार पर टिका नहीं, क्योंकि जब मैं बना रहा था तो वो डांसर, आप उस डांसर को बुलाएं, मैं जानता हूँ, आप उस डांसर को बुलाएं। आप सही कहते हो कि मामला जो है गंभीर है, हमें इसकी जांच करनी चाहिए। ऐसे जटिल मामलों का निपटाना आसान नहीं होता। वह नर्तक जो डांसर है वो कहाँ पर है, उसे बुलाइए। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वूमेन, डांसर जो थी अब बूढ़ी हो चुकी थी, कांपती हुई, ट्रेम्बलिंग मैंने कांपना, कोर्ट दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन, और जो कई साल पहले जब वह गरीब आदमी दीवार बना रहा था तो सड़क पर आप ही इधर से उधर जा रही थी, क्या आपने उसे देखा था? जी हाँ सरकार। यस माय लॉर्ड, हाँ मैंने देखा था, मुझे अच्छी तरह से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन,
तो आप पायल को छनकाती हुई इधर से उधर क्यों जा रही थी? क्या आप उस समय यंग थी? तो आप उसका ध्यान जो है काम से क्यों भटका रही थी? इसलिए उसने क्या कर दी? इसलिए उसने कच्ची दीवार बना दी। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, यू विल हैव टू बी पनिश्ड। शी थॉट फॉर अ मिनट and said, my lord, wait, I know now why I was walking up and down that street, had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. That was when this bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It is damned goldsmith fault. वो कहती है, जी हाँ सरकार, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो आप पायल छनकाती जा रही थी, आप यंग थी, आपने उसका काम भटका दिया। उसने 1 मिनट के लिए सोचा। शी थॉट फॉर अ मिनट। उसने 1 मिनट के लिए सोचा और कहा, सरकार ठहरिए, कि मुझे याद है कि मैं उस सड़क पर आ जा तो रही थी, लेकिन मैंने एक सुनार को कुछ गोल्ड के जो ज्वेलरी बनने के लिए आदेश दिया था। वह सुस्त और शैतान था। उसने कई बहाने बनाए, बोला कि आज आभूषण दूंगा, कल दूंगा, लेकिन सारा दिन यही कहता रहा। मुझे उसने 1 दर्जन बार अपने घर दौड़ाया। तभी ये राजमिस्त्री ने मुझे देखा। यह मेरी गलती नहीं है सरकार, ये सुनार की, गोल्ड वाले की गलती है, गोल्डस्मिथ का फॉल्ट है ये तो। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, एंड विजिंग द एविडेंस वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। गेट द गोल्डस्मिथ वेयर एवर ही इज हाइडिंग एट वंस। द किंग्स bailiffs searched for the goldsmith, who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusations against him, he had his own story to tell. My lord, he said, I am a poor goldsmith, it's true. I made this dancer come many times to my door. I gave her excuse because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant orders. They had a wedding coming and they would not wait. You know how impatient rich men are. Who is this merchant who kept from you from finishing the poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess on his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? अब वो कहता है कि बेचारी वह बिल्कुल, मैं लॉर्ड, बेचारी जो वो बिल्कुल ठीक कह रही है। राजा ने सबूत को देखते हुए कहा, हमें आखिर में वास्तविक जो अपराधी है, वास्तविक अपराधी जो है मिल ही गया। उसने सुनार को बुलाया कि वह जहाँ पर भी हो उसे तुरंत बुलाओ। राजा के कानून जो होते हैं, कानून के अफसरों ने सुनार को खोजा, उसको ढूंढा और वो अपनी दुकान के एक कोने में छुपा हुआ था। जब उसने अपने विरुद्ध अपराध को सुना तो अपनी कहानी सुनाई। वो बोला, महाराज मैं एक गरीब सुनार हूँ। यह सच है कि मैंने एक डांसर को अनेक बार मेरे दरवाजे पर आने के लिए मजबूर किया था। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर। मजबूर किया था, लेकिन मैंने उससे बहाने नहीं किए, क्योंकि मैं आभूषण एक मर्चेंट, अमीर व्यापारी के लिए बना रहा था। क्यों बना रहा था? क्योंकि उस व्यापारी के यहाँ शादी होने जा रही थी। वे लोग इंतज़ार नहीं कर रहे थे। आप जानते हैं कि धनी लोग कितने जो अधीर होते हैं। हु इज़ द रिच मर्चेंट फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी? तो वह धनी सौदागर कौन था जिसने बेचारी उस औरत के आभूषण बनाने से रोका, उस सड़क पर बार बार आने जाने के लिए मजबूर किया, जिससे राजमिस्त्री का ध्यान दीवार बनाते समय विचलित हो गया, जिससे दीवार जो खराब बन गई। यह दीवार उस आदमी के ऊपर गिर गई और वह मर गया। क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? कैन यू नेम हिम?
The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall and had fallen. Now justice had come. Now justice had come full circle, thought the king, back to the merchant when he was rudely summoned back to the court. He arrived crying, "It was not me, but my father who ordered the jewelry. His dad, I am innocent." But the king consulted the minister and ruled decisively, it's true. Father is the true murderer, his dad, but somebody must be punished in his place. You have inherited everything from the criminal father of yours. He rich as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of his horrible crime. You must die. अब जो गोल्ड स्मिथ है, सुनार ने व्यापारी का नाम बता दिया। वह कोई अन्य आदमी नहीं था, बल्कि वह व्यक्ति था जिसके ऊपर दीवार गिर गई थी। अब न्याय अंतिम चरण पे, लास्ट पोजीशन पे आ गया। राजा ने सोचा कि आखिर असली अपराधी वही व्यापारी निकला। उसे जब दरबार में कठोरतापूर्वक फिर बुलवाया गया, वह चीख मारता आया, वह नहीं था बल्कि मेरे पिताजी थे जिन्होंने आभूषण की डिमांड की थी। उनका देहांत हो चुका, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। परंतु राजा ने क्या किया, अपने मंत्री की सलाह ली, उसका निर्णय अपना निर्णय दे दिया। यह सच है कि तुम्हारे पिता ही असली हत्यारे हैं। अब वे इस संसार में से जा चुके हैं, परंतु उसके स्थान पर किसी को तो दंड मिलना ही चाहिए। तुमने अपने पिता की हर चीज को वसीयत के रूप में प्राप्त किया है, उनकी दौलत, उनके पाप। मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था, तभी मुझे पता चल गया था कि तुम इस जो अपराध की जड़ हो, तुम्हें मरना ही होगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि तुम्हें तो यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना ही होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर एग्जीक्यूशन एज द सर्वेंट्स शार्पेंड द स्टेक and got it ready for the final impaling of the criminal. It occurred to the minister that the rich merchant was somehow to him thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king's too worried about it. "What shall we do?" he said when he suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man. Fat to do was to find a man enough to fit the stake. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. अब राजा ने हुक्म दिया, एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक। राजा ने हुक्म दिया कि फांसी के लिए तिख्ती तैयार करो। जब सेवक खूंटी को नुकीला बना रहे थे तो अपराधी को फांसी चढ़ने के लिए तैयार किया गया। तो राज्य मंत्री ने महसूस किया कि धनी व्यापारी बहुत कमज़ोर है, वह तो सूली पर पूरा फिट नहीं हो सकता। उसने राजा से निवेदन किया कि राजा को इस बात की चिंता हुई कि अब हम क्या करें, व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करें। वह बोला, अचानक उसे समझ आया, किसी भी मोटे आदमी को खोज लें और फंदे में पूरा आ जाए। उन लोगों का ध्यान उस शिष्य पर पड़ा जो महीने तक केले, चावल, गेहूं और घी खाकर मोटा हो गया था। What have I done wrong? I am innocent. I am a sunny ass who cried. That may be true, but it is the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. They said and carried him to the place of execution. He remembered his wise guru's words. This is a city of fools. You don't know what they will do next. While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. The guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. He arrived at once save his disciple, who had got himself into such a scrape through love of food. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper.
Then he went to the king and addressed him, O wisest of kings, who is the greater, the guru of the disciple? Of course, the guru, no doubt about it. Why do you ask? Then put me to the stake first. Put my disciple to death after me. When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, put me to the death first, not him. अब क्या वो कहता है कि वट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या अपराध किया है? आई एम इनोसेंट, मैं जो निर्दोष हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, वह चिल्लाया। दैट्स मे बी ट्रू, हो सकता है कि ये सत्य हो, लेकिन जो शाही, जो राजा का आदेश है, हम ऐसे मोटे आदमी की तलाश कर रहे हैं जो फंदे में पूरा आ सके। वे बोले और शिष्य को सूली पर ले गए। उसने अपने ज्ञानी गुरुजी के शब्द याद आ गए, यह एक मूर्खों का नगर है, तुम नहीं जानते आगे क्या करेंगे तुम्हारे साथ। जब वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था, उसने अपने दिल में अपने गुरु को याद किया, गुरु से प्रार्थना की और उसकी चीख सुनने के लिए, चाहे वह कहीं भी हो। गुरु ने सब कुछ एक दृष्टि से देख लिया। उसने चमत्कारी शक्ति, बहुत दूर दूर तक वो देख रहा था। भविष्य को, वर्तमान को, भूतकाल को वो अच्छे से जानते थे। अपने शिष्य की प्राण रक्षा के लिए वे एकदम ही अराइव्ड एट वंस, वो अचानक वहाँ पहुँच गए। शिष्य भोजन के लालच में मुसीबत में फंस चुका था, लेकिन निश्चय ही गुरु जो है, जैसे ही गुरु जी आए, शिष्य को डांटा और उसने धीरे से कहा। वह फिर राजा के पास गए और बोले, हे महान राजा, बड़ा कौन है, गुरु या शिष्य होता है? तो वो बोले, ऑफ कोर्स द गुरु, निश्चय ही गुरु, इसमें कोई संदेह नहीं। आप ये क्यों पूछ रहे हो? तब आप मुझे ही पहले फंदे पर लटकाएं, मेरे शिष्य को मेरे बाद फांसी दें, क्योंकि पहले गुरु ही होता है सबसे पहले। शिष्य ने सभी बात सुनी तो वह समझ आ गया और चीखने लगा, बोला कि नहीं, मुझे फांसी दी जाए, मुझे पहले, उन्हें नहीं, गुरुजी को नहीं, मुझे पहले फांसी दी जाए। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. The king was puzzled by this behavior. He asked the guru, why do you want to die? We choose him because we needed a fat man for the stake. You should not ask me such question. Put me to the death first, replied the guru. Why, there's some mystery here. As a wise man, you must make me understand. Will you promise to put me to death if I tell you? Asked the guru. The king gave him the solemn word. The guru took him aside out of the servant us short and whispered to him, do you know why we want to die right now? The two of us, we have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. That stake is the stake of God of justice. It's new. It has never had a criminal on it. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, and whoever goes next will be the future minister of this country. We are sick of this ascetic life. It would be nice to enjoy ourselves as king and the minister for a while. Now keep your word, my lord, and put us to death. Me first remember. गुरु और शिष्य आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा क्या हो गया उनमें कि पहले कौन फंदे को गले लगाएगा, भी पहले कौन फांसी लेगा। राजा इस व्यवहार को देखकर बड़े हैरान हुए। उन्होंने गुरु से पूछा कि आप क्यों मरना चाहते हो? हमें उसे चुना था क्योंकि फांसी पर लटकाने के लिए हमें फैट मैन की, एक मोटे व्यक्ति की आवश्यकता थी। आपको मुझसे, वो बोला, आपको मुझसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए थे, मुझे पहले फांसी दो। गुरु ने उत्तर दिया, क्यों? यह एक रहस्य जरूर है। बुद्धिमान व्यक्ति की तरह आप मुझे समझाएं। यदि मैं आपको ये रहस्य समझाता हूँ तो क्या आप मुझे फांसी दे दोगे? गुरु ने पूछा। राजा ने अपना वचन दिया। गुरु उसे एक तरफ नौकरों से दूर ले गया। धीरे से उसने कहा, क्या आप जानते हो हम अभी क्यों मरना चाहते हैं? हम दोनों, हम सारे संसार में घूम चुके हैं, लेकिन हमें इस नगर जैसा अथवा आप जैसा राजा देखा ही नहीं। इस नगर जैसा और आप जैसा राजा नहीं देखा, इसलिए यह फंदा न्याय का है, देवता का फंदा है, यह नया है। हाँ, इस पर किसी भी अपराधी को मृत्यु दंड नहीं दिया गया। जो भी आदमी इस पर पहले मरेगा वह इस देश का भावी राजा होगा।
आने वाला राजा होगा, इसलिए वो मृत्युदंड नहीं दिया गया। तो और जो भी कोई बाद में मरेगा वह इस देश का मंत्री होगा। तो इस मंत्री होगा। हमें अपने सन्यासी जीवन से तंग आ चुके हैं, इस सन्यासी जीवन से हम काफ़ी परेशान हो चुके हैं। एस्थेटिक लाइफ, इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ। इसलिए हम क्या चाहते हैं, हम कुछ दिनों तक राजा और राजमंत्री बनने का आनंद लेना चाहते हैं। आप जब अपना वचन पूरा करेंगे महाराज हमें फांसी दे, याद रहे माई फर्स्ट रिमेंबर, लेकिन मैं पहले मरूंगा। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। He did not want to lose the kingdom someone else in the next round of life. He needed time, so he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. It's not right for us to give the kingdoms to other in the next life. Let's go on the stake ourselves and we will be reborn as king's minister again. Holy men do not tell lies.